Hello everyone, welcome to another video. This is best notification for you. Union Public Service Commission, which is released on 11th of December 2024. Examination notice number 3 2025 NDA first. Last date for the submission of application, that is 31st of December 2024. National Defence Academy and Naval Academy examination first stage 2025. Commission's website, that is upsc.gov.in. Important कैंडिडेट टू इंश्योर देयर द एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होगा? द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट they fulfill all the eligibility condition for the admission to examination, and their admission at all the stage of examination will be purely provisional, subject to satisfying the prescribed eligibility condition. Mere issues of admission certificate to the candidate will not imply that his candidature has been finally cleared by the commission. Verification of the eligibility condition with reference to the original document is taken up only after candidate has qualified for the interview or the personality test. आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा और जब भी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होने के बाद कमीशन ने डिसाइड करेगा कैसे अप्लाई कैसे करेंगे. दो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग वेबसाइट ये upsc.online.gov.in पर आपको जाके अप्लाई करना है. ए कैंडिडेट हु इज़ विलिंग टू अप्लाई फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड द नेवल एकेडमी examination shall be required to apply online and to submit the requisite information and the supporting document toward the various claims such as the date of birth and the educational qualification etc. as may be sought by the commission along with the registration and the online application form. For the detailed instruction for the filling of the form, the notice for the National Defence Academy and the Naval Academy Examination Stage 1 2025 may be referred. The failure to provide the required information document along with the online application form or the within the correction window, if any provided by the commission, will entail cancellation of the candidate for the examination. आपको ये टाइम दिया जाएगा आफ्टर अप्लाइंग. एक विंडो पीरियड होगा जहां आपको कुछ भी अगर गलती किए हो तो उसे करेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद अगर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप डालोगे तो आपको आपका जो कैंडिडेचर है आपको कैंसिल कमीशन ने कैंसिल कर सकता है. रजिस्ट्रेशन हैज़ टू बी डन ओनली वंस इन लाइफ टाइम. ये जो कमीशन वेबसाइट जाके आपको टोटल लाइफ टाइम में यूपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होगा इन फ्यूचर आपको उसी के हिसाब से जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे वही वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा एंड अकॉर्डिंगली जो भी एग्ज़ाम देंगे आप उसी के हिसाब से आपका डाटा आएगा. तो केयरफुली go through the notification and read properly line by line, then fill up it. This can be done any time throughout the year. If the candidate is already registered, she can proceed straight way for filling of the online application for the examination. आपका अगर पहले से रजिस्टर है तो आप जाके डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. अगर आपका कभी भी ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं तो आप अभी जाके पहले रजिस्ट्रेशन कर ले, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें. मॉडिफिकेशन इन रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल. क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो? इन केस द कैंडिडेट वांट टू इफेक्ट एनी चेंज इन हिज और हर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, इट शैल बी अलाउड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम. लाइफ टाइम में अगर कुछ भी गलती हुआ है तो आपको वन टाइम ही मौका मिलेगा टू करेक्ट इट. आफ्टर द रजिस्ट्रेशन एंड द एट रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, द ऑप्शन टू चेंज इन द रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल डाटा शैल बी अवेलेबल टिल एक्सपायरी ऑफ द 7 days फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द closure of the application window of his or the first final application for any examination of the commission. आपको 7 days टाइम मिलेगा, उसी के अंदर आप ठीक करना है तो ठीक कर लीजिए, अगर कुछ गलत है तो ठीक सही कर लीजिए. In case the candidate after the registration apply for the first time in this examination, last date of the modification of registration would be 7th of January 2025. मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल. रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल को छोड़ के और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो और कितना दिन 7 days टाइम मिलेगा. एंड अगर आप 1 जनवरी से अप्लाई किए हो तो ये 7 days मतलब 7 जनवरी तक ये रहेगा. उसके बाद आपको ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा. लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म. द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 31 December 2024 टिल 6 PM. शाम 6 बजे तक
दिसंबर को आप क्लोजिंग डेट है। उससे पहले पहले आपका अगर ये डिफेंस में जाना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में अगर जाना है तो काइंडली उससे पहले ये एप्लीकेशन भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर लास्ट डेट तक आपको रुकना पड़े तो ये वेबसाइट गेटिंग स्लो एंड you may be debarred from the examination. The eligible candidate shall be issued an e-admit card on the last working day of the preceding week of the date of examination. जो जिस वीक में आपका एग्जामिनेशन होगा उससे 7 डेज पहले आपको ये ई नोटिफिकेशन साइट में अवेलेबल कर दिया जाएगा। आपको upsconline.gov.in पर बार बार जाके विजिट करना है रेगुलरली। फॉर बीइंग डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट, नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय पोस्ट। बाय पोस्ट के थ्रू कोई भी एडमिट कार्ड आपके घर तक नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑल द एप्लीकेंट आर द रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी व्हाइल द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज द कमीशंस में यूज इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर द कॉन्टैक्टिंग देम। कमीशन ने आपको बाय पोस्ट के थ्रू कुछ भी कॉन्टैक्ट करने का कोशिश नहीं करेगा। केयरफुली आपका जो भी वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होगा, काइंडली उसे एग्ज़ाम ख़त्म होने तक सही सलामत प्रिजर्व करके रखिए, नहीं तो आपका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा और आप एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते हो। पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर आप कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर एंड द मार्क बाय द कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा एंड अगर कुछ गलत कर रहे हो क्वेश्चन आंसर तो उसमें से आपका नेगेटिव हो सकता है। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, ये आपको पढ़ लेना है, जो ज़रूरत है हम उसी पॉइंट के हिसाब से थोड़ा डिस्कशन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे। ट्राई करेंगे कि इस वीडियो को जितना भी छोटा हो सकते हैं उसे करने का कोशिश करेंगे। फैसिलिटेशन काउंटर फॉर द गाइडेंस ऑफ द कैंडिडेट इन केस एनी गाइडेंस और information clarification regarding their application, candidate can contact UPSC facilitation counter near the gate C of the campus in person over the telephone number ये 01123385271 और द 01123381125 और 01123098543 ऑन वर्किंग डेज बिटवीन 10 to 17 आवर्स। आपको अगर ये एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ क्वारी है तो आप इसी नंबर से कॉल करके वर्किंग डेज के अंदर 10 बजे से शाम 5 बजे तक क्वारी कर सकते हैं। फ़ोन बैन होगा। इंस्ट्रक्शन इन अपलोडिंग फोटोग्राफ व्हाइल फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। द फोटोग्राफ, क्या क्या फोटोग्राफ का क्राइटेरिया है जो कि आपको अपलोड करना है। द फोटोग्राफ अपलोड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट मोर देन 10 days ओल्ड। 10 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, ओल्ड पुराना नहीं होना चाहिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो फ़ोटो डालेंगे। एंश्योर द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑन व्हिच द फोटोग्राफ वाज टेकन। ये जो फोटोग्राफ जो लोगे उसमें डेट मेंशन होगा ऑन दी फोटोग्राफ में। द कैंडिडेट फेस शुड बी ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस। ये जो फोटो होगा 3/4 आपका फेस होगा इन द फोटोग्राफ एंड द कैंडिडेट मोड एंश्योर दैट देयर अपीयरेंस मस्ट मैच विथ देयर फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। आप जो भी फोटो अपलोड करेंगे, अपलोड होने के बाद आपका वही फ़ोटो के साथ आप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपका फेस मैचिंग होना चाहिए। अगर आप फॉर इंस्टेंस इफ ए कैंडिडेट अपलोड द बेडर फोटो एंड ही मस्ट अपीयर विद द सेम लुक इन द रिटन एग्जामिनेशन, सेम वुड बी द केस विद द स्पेक्टेकल्स एंड द सो आपका जो भी फोटो अपलोड होगा उसी के हिसाब से आप दिखना चाहिए। द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन वेल in time at least 30 minutes prior to the commencement of each session of the examination and no late entry will be allowed to inside the। आपको जो भी मतलब एग्ज़ाम देना है ईच शिफ्ट को से 30 मिनट से पहले आपको एंट्री करना है। अगर 30 मिनट से एंट्री नहीं करोगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। कैंडिडेट रिकॉर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन at upsconline.gov.in only, no other mode of is allowed for the submission of application। आपको इसी upsconline.gov.in पर जाके आपका यूपीएससी ये जो फॉर्म भर्ती करना है और ऑनलाइन मोड में ही होगा, ऑफलाइन मोड अवेलेबल नहीं है। सो नेशनल डिफेंस एकेडमी an examination will be conducted by the Union Public Service Commission on 13th of April। डेट भी डिक्लेयर हो गया है। ये ध्यान दें कि आपका एग्ज़ाम 13th of April को होने वाला है। फॉर द एडमिशन टू आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स विंग ऑफ द एनडीए फॉर द 155 कोर्स एंड फॉर द 117th इंडियन
national academy course commencing from the 1st of January 2026। जनवरी 1 को आपका ये एकेडमी स्टार्ट होने वाला है एंड आपका एग्ज़ाम होगा 13th of April 2025 में। द डेट ऑफ द होल्डिंग द एग्जामिनेशन एज ए मेंशन अबव इज लिएबल टू बी चेंज एट द डायरेक्शन ऑफ द कमीशन। कमीशन के हिसाब से ये डेट भी चेंज हो सकता है। द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। ये एज एंड वैकेंसी क्या क्या है। नेशनल डिफेंस अकेडमी आर्मी में 208 वैकेंसी है इंक्लूडिंग 10 फीमेल कैंडिडेट। 208 में से 10 फीमेल होंगे। एंड नेवी में 42, 6 फीमेल आउट ऑफ 42। एंड एयरफोर्स में फ्लाइंग जोन में 92 एंड आउट ऑफ व्हिच 2 आर द फीमेल। एंड ग्राउंड ड्यूटीज़ में 18 एंड 2 आउट ऑफ 18 2 नंबर आर फीमेल कैंडिडेट। एंड ग्राउंड ड्यूटीज़ नॉन टेक्निकल 10 in which 2 post for female candidate। नेवल एकेडमी +2 कैडेट एंट्री स्कीम में टोटल 36 है। आउट ऑफ 36 ओनली 5 फॉर फीमेल कैंडिडेट। सो टोटल 406 वैकेंसी निकला है। वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड मे बी द चेंज डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग कैपेसिटी इन द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड इंडियन नेवल एकेडमी। ये कमीशन के हिसाब से ये वैकेंसी में चेंज हो सकता है। दिस विंडो विल रिमेन। चलो ये आगे देखिए। हाँ, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड कहाँ कहाँ होगा एग्ज़ाम। एग्जाम सेंटर अगरतला है, आगरा है, अजमेर है, औरंगाबाद, अइजल, अलीगढ़, अल्मोड़ा उत्तराखंड एंड अनंतपुर आंध्र प्रदेश एंड छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, बिलासपुर छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, कटक, देहरादून, दिल्ली, धर्मशाला, धारवाड़, दिसपुर, फरीदाबाद, गंगटक, गया, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, गुड़गांव, ग्वालियर, हैदराबाद, इंफाल, इंदौर, ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, जोरहाट, कारगिल, कोची, कोहिमा, कलकत्ता, कचगड़ी, लेह, लखनऊ, लुधियाना, मदुरई, मांडी, मुंबई, मैसूर, नागपुर, नवी मुंबई, पनाजी, गोवा, पटना, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज, पुडुचेरी, पुणे, रायपुर, राजकोट, रांची, संबलपुर, शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर उत्तराखंड, थाने, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, तिरुपति, उदयपुर, वाराणसी, बेलूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम एंड हनुमकोंडा, Warangal urban। So these are the examination center according to your nearest zone। You can choose which one is best for you। Condition of eligibility, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है थोड़ा देख लेते हैं। नेशनलिटी कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड मेल और द फीमेल एंड मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो तो पहले से कंडीशन ये है कि आपको अनमैरिड होना है। अगर आप मैरिड है तो यू आर नॉट एलिजिबल। सिटीजन ऑफ इंडिया or a subject of Nepal or a person of the Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and the East African countries of the Kenya and the Uganda, the United Republic of the Tanzania and the Zambia, Malawi and the Zaire and the Ethiopia or the Vietnam with the intention of the permanently settling in India। जो भी कैंडिडेट बाहर से आए हैं, जो माइग्रेट हुए हैं वो इंडिया में सेटल हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैटेगरी 2 एंड 3 अबव शैल बी ए पर्सन हुज फेवर एंड द सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी हैज बीन इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड आपका सारा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट एंड सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस ओनली अनमैरिड मेल और द फीमेल कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर दैन द 2 जुलाई 2006 एंड नॉट लेटर दैन 1 जुलाई 2009 आर एलिजिबल। 2 जुलाई 2006 से पहले नहीं होगा और 1 जुलाई 2009 के बाद नहीं होगा। उसी के बीच अगर आपका बर्थ हुआ है तो यू आर एलिजिबल। The date of birth accepted by the commission is that entered in the matriculation or the secondary school leaving certificate or the in certificate recognized by the Indian University as the equivalent to matriculation or in the exact
extract form and the register and the matriculation maintained by the university and the which must be certified by the proper authority of the university or in the secondary school examination or on the equivalent examination certificate. These certificates are the required to be submitted only the declaration of the result of the written part of the examination. No other document relating to age like horoscope and the affidavit and birth exit and from the municipal corporation service record and the like will be the accepted. The expression matriculation and the secondary school examination certificate in this part of the instruction include the alternative certificate mentioned above. So ये आपको समझ लेना है. All the communication in this regard should be contained in the following particular name and the year of the examination, registration, ID, roll number, name of the candidate and the complete postal address, valid and the active email ID. ये सब आपको केयरफुली हैंडल करना है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर आर्मी विंग ऑफ द नेशनल डिफेंस अकेडमी 12th class pass or 10+2 pattern of the school education or the equivalent examination conducted by the state examination board or the university. 4-year portion the naval wing of the national defense academy and for the +2 cadet entry scheme at the Indian Naval Academy. 12th class pass with the physics, chemistry and mathematics of the 10+2 pattern of the school and the education or the equivalent conducted by the state education board or the university. Candidates who are the appearing in the 12th class under the 10+2 pattern of the school examination equivalent examination can also apply for this examination. कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग द 12th क्लास जो भी स्टूडेंट अगर 12th क्लास का एग्जामिनेशन दे रही हो, अगर +2 स्कूल एजुकेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के दौरान भी आप अप्लाई कर सकते हो. सच कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग फॉर द एसएसबी इंटरव्यू बट द कुड नॉट प्रोड्यूस matriculation or the +2 equivalent certificate in the original at the time of SSB interview should forward the duly the self-attested photocopies and director of the general recruiting army headquarters West Block 3 and the RK Puram New Delhi 110066 and for the Naval Academy candidate on the Naval headquarters DMPR Y and the R section room number 204 and the C wing in the Sena Bhavan New Delhi 110011 by the 15th of December 2025 telling which their candidate will be the cancelled. All the other candidates who have the produced their matriculation and the 10+2 pass the equivalent certificate in the original at the time of the attending the SSB interview and they have got the same verified by the SSB authorities are the not required to submit the same to army headquarters and the naval headquarters as the case may be. ये डिटेल में फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा देख लेते हैं. फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है? Current must be physically fit and according to the physical standard for the admission to the National Defense Academy and the Naval Academy examination stage 1 2025 as per the guideline given in the appendix 4. The candidate who has the region wisdom or the disciplinary ground from the any of the training academy are the not eligible to apply. P candidate accepting SC/ST or the female candidate SC/ST candidate or the female candidate ward of the NCO and the ORS specific not below who are the exempted from the payment of the fee are the required to pay a fee of the 100 rupees either by the remitting the money in any branch of the State Bank of India by a case or by using the Visa, Master, Rupee, credit card or the debit card pay payment. Application who out for the pay by the case mode and the should print the system generated pay in slip. How to apply? UPSC online.gov.in पर जाके आपको अप्लाई करना है. So this is the all letter submission that is 31st of December. ये फाइनल डेट है. ट्रैवलिंग अलाउंस as for the first time the commission permanent or other correspondence with the commission army naval. So these are the details of the application. You should go through the application notification details before applying. This is the appendix 1 scheme for the syllabus of examination. क्या क्या syllabus होगा? Written examination time allowed for the maximum mark, that is mathematics and general ability test. Code 1 for mathematics, code 2 for general ability test and the duration 2.5 hour दोनों के लिए. पहले में मैथमेटिक्स 300 एंड द जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क एंड टोटल 900 मार्क. ये होगा आपका सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन. पेपर 1 के लिए मैथमेटिक्स कोड 1 मैक्सिमम अलजेब्रा होगा. अलजेब्रा कॉन्सेप्ट ऑफ द सेट ऑपरेशन एंड द वेन डायग्राम, डी मोर्गन लॉ एंड द कट्स एंड प्रोडक्ट्स रिलेशन. ये जो भी आप +2 में पढ़ाई कर रही हो उसी के हिसाब से क्वेश्चन आएगा. मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ट्रिगोनोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री के डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन,
vector vector algebra statistics and the probability. Paper 2 general ability test. Part 1 English 200 mark. Part B general knowledge 400 mark. Section A physics. Section B chemistry. Section C general science. Section D history freedom and movement. Section E geography. Section F करंट इवेंट। उसके बाद आ गया इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। अपेंडिक्स 2 इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको आपका जो वेबसाइट है UPSC ऑनलाइन gov.in पर जाके आपको डिटेल में भरना है फॉर्म। डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन द above mentioned website and it will be required to complete the one online application form containing the 2 stage, that is part 1 and part 2, and the candidate required to pay 100 rupees आपको देना पड़ेगा। So this is the all over the application. लास्ट डेट 31 दिसंबर। ये टोटल क्या क्या सिलेबस होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, अनफेयर मीन्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कंडक्ट इन द एग्जामिनेशन हॉल। एक टोटल डिटेल्स जो भी आपको ज़रूरी है एंड ये टोटल आपको एप्लीकेशन कैसे आंसर कैसे करोगे, ये टोटल एप्लीकेशन में ये नोटिफिकेशन में टोटल दिया गया है। आप प्लीज़ गो थ्रू दिस एप्लीकेशन नोटिस एंड उसके बाद आपको नोटिफिकेशन रीड करके आपका जो क्राइटेरिया है, आपका अगर क्राइटेरिया फिलअप हो रहा है तो काइंडली आप भर सकते हो ये फॉर्म। सो ये टोटल 109 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो हम उससे आगे और नहीं जा सकते। उससे आगे और जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द NDA notification. So please don't delay and don't wait for the last closing date, that is 31st of December. उससे पहले आप जितना जल्द हो सके अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी +2 में हैं, रनिंग चल रहे हैं एंड वो फाइनल एग्ज़ाम अपेयर करने वाले हैं, तो उन लोगों को भी रिक्वेस्ट है, आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द डिफेंस सेक्टर, तो आप ये बहुत ही अच्छा मौका है और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आपका एज लिमिट अगर वंस ख़त्म हो जाएगा तो ये कम्प्लीटली आपके लिए ये गेट क्लोज हो जाएगा। सो दिस अपॉर्चुनिटी विल नेवर कम बैक अगेन, देयरफॉर go through this clear notification and apply accordingly. Thank you so much. This is all about NDA notification 2025. Thank you everyone.